In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान निहायत रहम कंदड़ आहे. Lovely students, today we are going to learn a totally different topic. That is subject verb agreement, and this is going to help those students who are about to appear for their medical tests, and this topic will not only help only MDK students, but there are some other students like EK students and CA students and the like. So inshallah we are going to cover some points about subject verb agreement in today's lecture. So before I start teaching you today's point on today's different topic, I would like to utter a few lines of mystic poet of Sindh, Shah Abdul Latif Rahmatullah Alayh. He says, Mukhe muah piri badhiya vidho tar mein. Mukhe muah piri badhiya vidho tar mein. Ubha iye chaman mata pandh pusain. So after these beautiful lines of Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah Alayh, now we move towards our today's topic. So let's start. ओके बेटा, तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. पॉइंट्स पर आने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है. ठीक है, सो देख लें बेटा. अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन टू वेज. अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. के सब्जेक्ट के हिसाब से जो ना, मतलब वर्ब लगे लेकिन वो दो तरह से कि आया वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, या वो सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में. ठीक है, तो मतलब हमें इन दो चीज़ों का सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ख्याल रखना पड़ेगा. अगर मतलब हम थोड़ा सा भी इनसे जो ना, थोड़ा सा भी अगर हमने इनको इग्नोर किया, सो देयर माइट बी ब्लंडर्स, मतलब हमसे बड़ी गलतियां हो सकती हैं. ठीक है, तो ओके, वी मूव टूवर्ड्स रूल नंबर 1 दैट बिलोंग्स टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. इन रूल नंबर 1, singular noun takes singular verb with it. Singular noun takes singular verb with it. Let's take the example of this. Ali helps the poor. Ali helps the poor. In this, look, we have got this noun Ali, that is singular noun, and with it I have used the verb helps, there is also a singular. The reason behind it is because we are having this noun as singular, so because it is singular noun, that's why we are also using singular verb. यहाँ पर क्योंकि अली जो है, अली वो एक सिंगुलर नाउन है, सो उस सिंगुलर नाउन की वजह से हमने जो ना यहाँ पर जो वर्ब उसके साथ इस्तेमाल किया है, दैट इज एक्शन वर्ब, वो भी हमने सिंगुलर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया है. सो दैट becomes, I mean the blend of this becomes Ali helps the poor. After that, another example, that is Asif never tells a lie. Look, Asif is once again a singular subject, and look at the action verb tells. ठीक, this tells is also a singular verb. The reason behind it is Asif, because Asif is singular noun, and due to that the verb is also used as singular verb. right बेटा, आपने देखा कि पहली एग्जाम्पल में अली भी जो है सब्जेक्ट वो सिंगुलर नाउन है, आसिफ भी जो है वो सिंगुलर नाउन है. तो फिर जो अली वाला जुमला है उसमें भी हमने अली की वजह से लगाया है सिंगुलर वर्ब, दैट इज हेल्प्स, एंड आसिफ वाला जो जुमला है उसमें भी हमने आसिफ के हिसाब से लगाया है सिंगुलर वर्ब टेल्स. राइट, आई थिंक you have understood it. Now we move towards the second rule of subject verb agreement, that is rule number 2. Singular pronoun requires singular verb. Singular pronoun requires singular verb. Take the example of rule number 2, that is I often see him crying. Look beta, over here I have used pronoun
I, that is singular pronoun, and with it I have used singular verb, that is see. Acha, between these two words I have used a word often. Now there is one thing special in this word कि हम इसको दो तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं. We can pronounce this word in two ways. We can say often, we can say tea, often, and this pronunciation is mostly made by Americans, and often, Britishers, they omit it. They do not pronounce T. So, I often see him crying, or I often see him crying. ठीक है, तो मतलब ये दोनों चीज़ें इसमें होगी, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है, वी कम बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, और उस हिसाब से मैंने यहाँ पर जो वर्ब लगाया वो भी सिंगुलर है. ठीक है, आई एंड सी. ठीक है बेटा. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रूल नंबर 2. She loves eating pizza. Once again, she is a singular pronoun, and with it I have used verb loves. She loves, singular subject, pronoun, singular verb. Singular subject, pronoun, singular verb. Right, beta? So rule number 2 is over. Moving towards rule number 3, that tells about plural noun needs plural verb. आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लूरल नाउन जो है वो अपने साथ हमेशा लेता है प्लूरल वर्ब. ठीक है, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, singular pronoun, singular verb, right? So now come to the example. The boys are making noise in the class. The boys are making noise in the class. So the boys are making noise in the class. Coming to the important thing that belongs to subject verb agreement. Look over here beta, boys. Boys जो है वो है प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन की वजह से देख ले मैंने यहाँ पर आर लगाया है. प्लूरल नाउन हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल नाउन, अब उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लगाया है वर्ब आर. आर जो है वो प्लूरल वर्ब होता है, और सिंगुलर हमारे पास आपको मालूम है कि यहाँ या तो इज होगा या एम होगा, या इज होगा या एम होगा. ठीक है, यहाँ पर मैंने आर लगाया है. इट मीन्स क्योंकि ये बॉयज जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल नाउन है. ठीक है बेटा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रूल नंबर 3, दैट इज द स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू टेक टेस्ट. द स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू टेक टेस्ट. अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अहम चीज़ टेक के बारे में बता दूं बेटा. मोस्टली जो ना मोस्टली मतलब what I have observed, ठीक, when we are having these nouns, I'm just telling you, taste, paper, examination. Taste, paper, examination. If you are having these 3 nouns, ठीक, and you are going to use action verb take, so the meaning of take will not be like lena in Urdu. The meaning of verb take will be give. It would be adverse. It would be adverse. The meaning of take would be give, and the meaning of give would be take. Fine? Okay? So, चले मैं इसकी उर्दू भी बोल लेता हूँ, ठीक है, ताकि मतलब जो आपको थोड़ा समझ में आ जाए. The students are not willing to take taste. इसका मतलब ये होगा उर्दू में कि तालिब इल्म जो है वो टेस्ट देने के लिए राजी नहीं है. देख ले मैंने क्या कहा उर्दू में. तालिब इल्म टेस्ट देने के लिए राजी नहीं है. टेस्ट देने के लिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक इन उर्दू? लेना. ठीक, लेकिन यहाँ पे देख लें इसकी मीनिंग बन रही है देना. अच्छा, मैं थोड़ा सा और भी इसकी जो ना एग्जाम्पल में ले आता हूँ. इसका जो एडवर्स बन रहा, मतलब इसका जो अपोजिट, वो है गिव. हमारी उर्दू में गिव का मतलब होता है देना.
सही है। अब देखना, एक अगर टीचर में, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक माई एग्जाम्पल, कि अगर मैं बच्चों को कहूँ कि भाई मैं कल आपसे टेस्ट लूंगा, ठीक है, देख ले मैंने क्या कहा, मैं कल आपसे टेस्ट लूंगा। तो अब हालांकि लेना, जो ना लेना, हमारी उर्दू में लेने का मतलब होता है टेक, लेकिन यहाँ पर टेक वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर टीचर जो इस्तेमाल करेगा ना, वो करेगा गिव। आई विल गिव यू टेस्ट टुमारो, आई विल गिव यू टेस्ट टुमारो। अब देखना, इसको लॉजिकली भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखो बेटा, जो टीचर होता है ना, एग्जामिनर, एग्जामिनर वो क्या करता है, क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर शीट्स जो है ना, वो स्टूडेंट्स को देता है, लुक देता है। तो टीचर इज गिविंग एंड रिसीवर कौन है, वो है स्टूडेंट, वो उसको लेता है। तो लॉजिकली भी हम इसको मतलब समझ सकते हैं इन दिस वे, ठीक है बेटा। सो द स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू टेक टेस्ट, तालिब इल्म टेस्ट देने के लिए राजी नहीं है, सही है। सो आफ्टर दिस rule we move towards the rule number 4 that tells about plural pronoun takes plural verb। देखा आपने कि प्लूरल जो प्रोनाउन होता है वो अपने साथ लेता है प्लूरल वर्ब, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रूल नंबर 4, दे डू नॉट डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज ऑनेस्टली, दे डू नॉट डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज ऑनेस्टली। अब यहाँ पे देख लें कि दे प्लूरल प्रोनाउन है और असल हमारा एक्शन वर्ब ये डिस्चार्ज है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है डू, ठीक है, तो देख लें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है डू को, बिकॉज इसका अग्रीमेंट इस सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, इस डू का अग्रीमेंट इस सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो देख ले हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, वो है डज का, डू एंड डज। अगर यहाँ पर होता है ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर होता डज। फाइन, तो आपने देखा कि ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन अगर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे हो रहा है डज, ठीक है। अब क्योंकि वो नहीं है, यहाँ पर है दे, तो दे के हिसाब से यहाँ पर लगा हुआ है डू। तो ये डू जो है वो अग्री कर रहा है दे से और दे अग्री कर रहा है डू से, ठीक है। सो दे डू नॉट डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज ऑनेस्टली। डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पर होता है अदा करना, वो अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा नहीं करते, वो अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा नहीं करते, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रूल नंबर 4, दैट इज वी वांट टू अकम्पनी यू, वी वांट टू अकम्पनी यू। देख लें यहाँ पर प्लूरल नाउन वी, उसके हिसाब से देख लें यहाँ पे लगा हुआ है एक्शन वर्ब, दैट इज वांट, ठीक है। वी वांट टू अकम्पनी यू, हम आपके साथ जाना चाहते हैं, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। सो बेटा आपने देखा कि आज के हमारे नए टॉपिक में, विच इज़ गोइंग टू हेल्प स्पेशली दो स्टूडेंट्स who are after a few days who are going to appear for their MDK tests, or maybe there are some other students who might be preparing for their other examinations or tests, meaning like CA or like ECAT and such other tests. So I hope that today's topic is going to help many of you, inshallah. So if you have got any query regarding today's topic, you may ask me, in comments, and inshallah, I am going to answer those questions. So this was our today's lecture on subject verb agreement, wherein we learned a few points. Inshallah, meeting you soon in our next video, where I would teach you some more points about subject verb agreement. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.